Welcome back to the channel, guys. Hope you all are doing well. So, guys, we have a quick announcement to make. Adarsh, I will pass it over to you. Right, so this is for all our viewers who are watching this video for the first time or our existing viewers. We are basically changing the name of the channel to Old School Rivals. The reason being that we wanted to focus this channel mainly on the clubs that we support. As you know, Akshay supports Liverpool, I support Manchester United, and Tanmay supports Manchester City. We wanted to make this channel more of a club-specific channel so that we can kind of make our own niche on YouTube. And also, we have to give time to, other work that we do in our personal lives. So covering everything around Europe, around football, we will be a little tough for us, especially in the beginning. We have plans to do it in the future, but as of now, we all wanted to make this channel a club specific channel. So I hope you all will like this idea, and I would expect, or I would actually ask everybody to support us moving forward. Like our video, subscribe to the channel, share our videos to all your friends. And one more update is that moving forward, our channel is not going to be a only English speaking, spoken in English. तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इंग्लिश काइंड ऑफ बोलने की कोशिश करेंगे. 70% विल बी लाइक हिंदी एंड 30% इंग्लिश वेर एवर इट्स नेसेसरी. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि यार हम एक नेटिव हिंदी स्पीकर्स हैं, एंड द वे वी कैन कनेक्ट विद आवर ऑडियंस इन हिंदी इज मच मोर कंपेलिंग देन इंग्लिश. हमारे आइडियाज भी अच्छी तरह बाहर निकल के आ पाते हैं, और वो जो कनेक्ट बन पाता है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर इन हिंदी. हम अभी पिछले कुछ टाइम में जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टू सी हाउ इट वर्क्स इन इंग्लिश, बट आई थिंक मेरे को रियलाइज हुआ है पर्सनली कि ये अगर हम इंग्लिश फॉर्मेट में करें, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो ये बेटर होगा. इट्स जस्ट अगेन एन एक्सपेरिमेंट. सो ये इवेंचुअली हमें हमारे व्यूअर्स ही बताएंगे कि हाउ इट वर्क्स. सो गाइज, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड आई विश दैट this one is a good video to start off with. And if you like the video, do like it, subscribe to the channel, and share the video with all your friends and family and everybody you want. So Tanmay, I think there is only one place to start. इस weekend पे हमारा friend अक्षय है. उसकी team Liverpool is traveling to Newcastle United, one of the most toughest grounds to basically get any Yeah, result, not just a win. अगर तुम वहां से draw करके भी निकलते हो in the current form, especially so away. being away from home, it will be a very good result for Liverpool. But Akshay, because you were not there in the last video, and we saw that Newcastle went to Manchester City, and they lost that match 1-0. बहुत कोई embarrassing loss तो थी नहीं यार, Man But City they against. bossed the midfield, man. I That was would surprising. I wouldn't say they bossed the midfield, but they were decent. They were not like. Considering no, they bossed the midfield considering Man City's quality. हाँ, तो मैं I उसी don't चीज think पे आ so. रहा I था. don't agree with that totally, but that's fine. हाँ, मैं उसी चीज पे आ रहा था कि दे प्लेड वेल. आई वोंट से दैट दे प्लेड बैड, बट डज दैट गिव यू एनी एनकरेजमेंट कि वो वहां से कुछ निकाल के नहीं ला पाए? दे वर नॉट एबल टू ड्रॉ दैट मैच. दे कुड हैव ड्रॉन दैट मैच. सो डू यू थिंक देयर इज एनी पॉजिटिव फॉर लिवरपूल टू ट्रैवल टू Yeah, न्यूकासल्स होम ग्राउंड एंड I गेट अ don't विन? think I don't think there is any positive for Liverpool because Konate is injured. So obviously our defense is currently the weakest at the moment. And I believe Vataro Endo is not as bad a signing that I thought it would be. He is looking very encouraging in training, and some of the players are shocked to see like his physicality and how he runs up and down the field. So I believe he can be an encouraging player. So let's see what happens. I think he will start this match, Bataro Endo, and also I want to see Nunes start because Newcastle is quite physical and Nunes is very important सो in that बेसिकली area. मिडफील्ड में तू कह रहा है कि वेटारो एंडो को स्टार्ट कराएगा. सो हु विल बी द प्लेयर दैट यू विल लीव आउट फ्रॉम द मिडफील्ड? I think McAllister. McAllister, Bataro Endo और Soboslai. McAllister will miss. He गैकपो got हटेगा a ना, गैकपो हट जाएगा. नहीं, मैकेलिस्टर मिस नहीं करेगा यार. McAllister. दैट रेड कार्ड वाज नहीं नहीं रूल्ड नहीं नहीं आउट. नहीं 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 वो रूल आउट हो गया. वो रूल आउट हो गया था. अब Okay. कोई अच्छा, बैन हाँ नहीं हाँ है. हाँ, या. तो गैकपो तो जाएगा मतलब. मैकेलिस्टर, हाँ गैकपो जाएगा. सो तेरे को क्या लगता है जोटा कि, भी जा सकता है, गैकपो स्ट्राइकर भी आ सकता है. पर्सनली तो मुझे इधर लगता वे. है कि गैकपो ही जाएगा. मेरे को लगता है कि यर्गन क्लॉप काफी परसिस्ट कर रहा है विद स्टार्टिंग जोटा, तो वो रहेगा, और जोटा गैकपो हाँ. माइट गेट आउट ऑफ द स्क्वाड. बट आई थिंक लिवरपूल को शुरू के 10 15 20 मिनट तक बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज न्यूकैसल वहीं पे सबसे ज्यादा डेंजरस है. और दे जस्ट और लिवरपूल वहीं वहीं पे सबसे ज्यादा गोल खाती है शुरू के 15 वल्नरेबल मिनट है. में.
एग्जैक्टली जिस तरीके से न्यूकैसल दे जस्ट स्पेशली होम क्राउड के सामने यार वो पम्प्ड अप होते हैं, दे जस्ट गो ऑल आउट अटैक। वी सॉ इन द लास्ट सीजन यार, जिस तरीके से स्पर्स को 3-0 कर दिया था विद इन 12-13 मिनट्स एंड अदर यार मैचेस सारा आल्सो। मिडफील्ड का गेम है, सारा मिडफील्ड का गेम है यार। इसमें इस मैच में जैसे मैन सिटी वर्सेस न्यूकैसल था, ये भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर ही है। हम्म। जो मिडफील्ड को रूल करेगा वो जीतेगा। बाकी मैन सिटी ने एक गोल मार दिया था, बट इट कुड हैव गॉन मतलब इधर वे। तो इसमें भी हो सकता है कि भाई न्यूकैसल का लक काम कर जाए स्टार्टिंग में, और कोनाटे अगर ना खेले तो कौन आएगा? मैटिप आएगा उसकी जगह। मैटिप का अप एंड डाउन ही रहता है फॉर्म, कभी तो बहुत अच्छा खेल जाता है वो। मतलब उस पे ऐसा नहीं कह सकते बहुत टाइम बाद आएगा वो तो, कि भाई वो शुरू से अच्छा ही खेलेगा। नो बट मैटिप और जो गोमेज, क्योंकि जो गोमेज को पिछले जो कुछ गोमेज गेम्स का तो नाम मत ले यार। जो गोमेज राइट बैक सही है, वो सेंटर बैक उसके बस का नहीं है। बिकॉज मेरे को लगता है कि जो गोमेज स्टार्ट करेगा, बिकॉज पिछले 2 मैचेस में वो एज अ सब्स्टिट्यूट आया है खेलने, तो ही नहीं नहीं माइट करेगा स्टार्ट। यार, मैटिप ही करेगा। नहीं करेगा वो स्टार्ट। ओके, तन्मय व्हाट आर योर व्यूज? क्या लग रहा है तेरे को, कैसा I जाएगा think मैच? Newcastle will get the result out of it. Uh, I agree with Akshay. Konate का miss होना is going to hamper them big time, and Newcastle अपने home पे बहुत ज़्यादा strong है, literally बहुत ज़्यादा strong है. And defense में Liverpool is slightly vulnerable. They're still vulnerable, क्वाइट even with वल्नरेबल आई वुड से। midfield. Even with midfield also वो थोड़े से अभी भी vulnerable है. हाँ, Szoboszlai, McAllister के होते के साथ रहते, they can hold the ball. लेकिन then they उनकी midfield भी है with Tonali, uh, with players like तो Tonali. तो मारेज। exactly. तो and इसाक आइसैक बहुत परेशान करने वाला है वो बहुत परेशान करने वाला है, बहुत क्विक है, बहुत ज्यादा क्विक है। एंड इफ ही इज और अगर सॉर्ट ऑफ जेमी वार्डी। ही इज मोर स्किलफुल देन जेमी वार्डी। जेमी वार्डी ज्यादा स्किलफुल, जेमी वार्डी से बहुत ज्यादा स्किलफुल है इनफैक्ट वो, उसके स्किल्स भी है थोड़ी सी, राइट। एंड अगर कैलम विल्सन भी स्टार्ट कर लेता है, सो एक बहुत ही यू नो लीथल कॉम्बो हो जाएगा। फिजिकलिटी वाली इनकी फ्रंट लाइन भी हो जाएगी। सो एंड डिफेंस में दे हैव एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक केविन ट्रिपियर, राइट। लुइस डियाज के लिए बहुत डिफिकल्ट गेम होने वाला है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। लुइस डियाज के लिए बहुत मुश्किल गेम होने वाला है ये। आई डोंट बट थिंक ही लुइस शुड। डियाज के पास यार वो ट्रिकरी है कि वो निकाल देगा बॉल उससे। बहुत मुश्किल है यार, केविन ट्रिपियर के साथ निकालना बहुत मुश्किल है, बिकॉज केविन ट्रिपियर अभी भी अच्छा खासा क्विक है, हाँ राइट। हाँ, वो तो एंड नो द डाउट गुड अबाउट पार्ट इट। अबाउट हिम इज दैट एंड ही कवर्स एवरीथिंग, वो पूरा आगे पीछे सब कवर करता है। हाँ, एज अ राइट बैक ही इज बाय अ गुड मार्जिन ओवरऑल राइट बैक विद डिफेंसिव, कंसिडरिंग उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज भी अगर माइंड में रखे, क्रॉसिंग he क्रॉसिंग is बहुत अच्छी है better यार। than Trent Alexander-Arnold. हम्म। That's what I believe. ओवरऑल उसकी ओवरऑल डिफेंसिव एबिलिटीज को भी अगर हम माइंड में ट्रेंट इज रखें, नॉट अ राइट बैक यार, ही इज अ मिडफील्डर। वी हैव सीन दैट ही इज अ मिडफील्डर, ही इज नॉट अ राइट बैक बाय एनी मींस। एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से प्लेयर्स लाइक केविन ट्रिपियर एंड देन फ्रंट में आइसैक एंड मिडफील्ड में टोनाली, एक बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन बन टफ रहा तो है। है दे ही, लाइक अ टीम, दे टफ है। टीम की तरह खेल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, टीम की तरह खेल रहे हैं, सिंक है पूरी टीम में एक। बट अगेन इट्स लिवरपूल, सो मैं उनको कंप्लीटली रूल आउट तो नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ, फिलहाल गोल गोल मार आई सकती है थिंक लिवरपूल, 2-3 दो तीन बहुत ज्यादा है, आई डोंट थिंक मार दो तीन सकती है मार भाई। पाएंगे। सोबोज़लाई, मैकलिस्टर बहुत मारने को नेक्स्ट तो लेवल खेल पांच रहे छह हैं। मार सकती है, लिवरपूल में और वटारू कैपेबिलिटी एंडो। है अक्षय, दैट मारने को वो हाँ, 4-5 ही मार सकते हैं। लेकिन न्यूकैसल के होम पे इस बार है वो लोग। बट तो थोड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये। मैं बहुत सो एक्साइटेड हूँ इफ इसके लिए। माय प्रिडिक्शन, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ तन्मय न्यूकैसल प्रिडिक्शन, विक्ट्री। स्कोर प्रिडिक्शन वील डू इन द एंड, अभी I'm not जस्ट एक। making any score अच्छा अच्छा, prediction. I'm ओके। just saying that as per me, I think it's Newcastle who can get the result. एक decent victory या एक marginal victory लेके Newcastle ले सकती है ये। आई थिंक राइट 2-2 यार, ड्रॉ। स्कोर प्रिडिक्शन एक्चुअली लास्ट में करेंगे। मेरे को भी अब जस्ट आई वांट टू गिव माय 2 सेंट्स ऑन दिस मैच। मेरे को लगता है यार इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मैच फॉर लिवरपूल। दे प्लेड वेल इन द लास्ट मैच अगेंस्ट बर्नमथ, बट इट वाज बर्नमथ, लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड लिवरपूल थोड़ा जेल्ड अप लगी, And पर that too न्यूकैसल at Anfield. एट एनफील्ड And यहाँ that पे। too at Anfield. राइट, और मेरे को याद भी नहीं है लास्ट टाइम न्यूकैसल अपने होम पे कब मैच हारी थी। दे आर वेरी डोमिनेंट एट देयर होम स्टेडियम। ये अगर ड्रॉ लिवरपूल, करते हैं यार वो ज्यादातर।
होम स्टिल पेयर में। अक्षय हार नहीं रहे ना हारते यार, नहीं है, बहुत बड़ी चीज हारते है। नहीं है, हारते नहीं है। तभी तो मैंने बोला ड्रॉ ही मेरे को लग रहा है अगेन देख, अगर रिजल्ट। अगर ये लिवरपूल मैच जीत जाती है तो लेट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ से लिवरपूल किक ऑफ कर सकती है टू डू बिग थिंग्स इन दिस सीजन, हाँ अगर वो जीत जाती है। यार बट बट पता आई नहीं यार, ये किक ऑफ वाला ना मेरे को स्टोरी जम नहीं रही है प्रीमियर लीग में। कुछ पता नहीं चल रहा कब टीम किक ऑफ कर रही है, कब बीच में हार जाती है। वो नहीं, ओपोनेंट्स नहीं रहे अब, चार पांच वाले। अब भाई हर किसी को हरा सकते हैं ऑन वो ऑन देयर डे। वो मैं मान रहा हूँ, तो लेकिन अब वो आ चुका है देख, फैक्टर प्रीमियर लीग में। इसमें दो चीजें हैं। अगर देख, कई सारे हम्म, मैचेस होते हैं जिसमें टीम एक फ्लूक से जीत जाती है, लेट्स से लिवरपूल अच्छा नहीं खेलती, बट एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस से या किसी मान फ्लूक से ले वो। 2-1 जीत गई। हाँ, हाँ बट अगर लिवरपूल एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस करके निकलती है यहाँ से और न्यूकासल को मतलब चारों खाने चित करके हराती है, देन आई वुड से कि वो किक हाँ ऑफ कर सकती है हाँ अपना हाँ सीजन। हाँ, बट तो आई कैन से ऐसा होने की पॉसिबिलिटी लिटरली एटलीस्ट मैं बाय बता टू रहा हूँ, गोल्स, एटलीस्ट बाय 2 गोल्स अगर हराती है लिवरपूल तो वी कैन से। जस्ट 2 गोल्स नहीं, एक ओवरऑल मैच में डोमिनेंट परफॉर्मेंस हाँ शो हाँ करती है, हाँ। बॉल अपने कंट्रोल में रखती है, पासेस अपनी विल पे क्रिएट हम्म। करती है, फिनिशिंग करती है, तो मैं मानता हूँ ऐसे होने के ऑल दो चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। मेरे को भी पर्सनली ऐसा लगता है कि न्यूकासल यहाँ पे कुछ रिजल्ट लेके निकल सकती है, देयर इज अ गुड चांस। यार दे निकल तो सकती है ऑब्वियसली। they just have to make sure that they do not give too much respect to Liverpool, that they जैसे उन्होंने मैन सिटी को हाँ। दिया था थोड़ा सा, क्योंकि हम्म। मैन सिटी के मैच में आइसैक को कुछ ज्यादा आइसोलेट कर दिया था। दे वर नॉट ट्राइंग दोज रिस्की पासेस। अगर वो ऐसा करेंगे लिवरपूल के अगेंस्ट, इफ दे ट्राई दोज मिडफील्ड में पासेस, ज्यादा फोकस थे, इस अटैक हाँ, माइंडेड नहीं खेल रहे थे डर इतना। रहे थे यार, डर रहे थे। दे वर वेरी वेरी हम्म। वरीड ऑफ कंसीडिंग अ गोल। यहाँ पे आई थिंक उनको उतना डर नहीं लगेगा, होम पे भी हैं, दे विल ट्राई देयर चांसेस, आई थिंक दे विल स्कोर गोल्स आल्सो। सो बहुत और इंटरेस्टिंग लिवरपूल मैच वैसी, होगा। हाँ राइट, लिवरपूल वैसी हाई लाइन खेलती है तो वो हाँ, एस्पेक्ट तो इसमें रहेगा ही नहीं। तो मैच इंटरेस्टिंग होगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट यहाँ से यस चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट मैच। आई थिंक दिस वाज द ओनली बिग मैच फॉर दिस वीकेंड, यस। बट फॉर this यूनाइटेड, एंड weekend. आई विल कम टू आवर मैच। एवरी मैच इज अ बिग मैच नाउ, स्पेशली पहले दो मैचेस में जो हुआ है यूनाइटेड के साथ, एवरी सिंगल मैच। और मैं तो वेट कर रहा हूँ कि ऐसा कब मैच आएगा जब मैं अपनी टीम को लिटरली फुटबॉल खेलते हुए देखूंगा, क्योंकि अभी तक तो मैं देख ही नहीं पाया हूँ भाई। अभी तक तो पता नहीं चल एक क्या रहा है। एक फैक्ट आया था आज कि एंटनी 95 मिलियन में खरीदा है और चंद्रयान 75 मिलियन में लैंड हुआ है, लेकिन एंटनी अभी तक लैंड नहीं हो पाया। तो वही वही चक्कर है भाई। एक एक प्रॉपर गेम ऑफ फुटबॉल देखना चाहता हूँ मैं, तो इस पॉइंट पे कह रहा हूँ, हारो जीतो छोड़ो, मैं बस चाहता हूँ एक फुटबॉल टीम खेलो को अच्छा। मैं फुटबॉल खेलते हुए देखना चाहता हूँ, जो मैं अभी तक देख हाँ नहीं पाया हूँ। सो मैं अपना ओपिनियन दूंगा, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू गाइस। तो तन्मय, तू तू बता, यूनाइटेड का क्या लग रहा है इस मैच में, क्या थॉट्स हैं? जीत जाएंगे। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मेसन माउंट इंजर्ड हो गया है। सो नाउ जो ब्रूनो एंड माउंट जो एक दूसरे का स्पेस खा रहे होते हैं, वो पिक्चर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। आई एम प्रीटी मे श्योर बी। दैट दिस टाइम एरिक्सन स्टार्ट करेगा इन द मिडफील्ड, हु इज अ प्रॉपर सेंट्रल मिडफील्डर। ठीक है, आई आई एग्री विद यू आदर्श दैट थोड़ा सा उसमें स्टेमिना का प्रॉब्लम है उसका। लेकिन अगर वो शुरू के जो आधे घंटे या पौने घंटे में, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में, क्योंकि अभी सीजन नया नया स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा वो अभी तक खेला नहीं है, सो फ्रेश आएगा वो फील्ड पे। सो आई एम प्रीटी हम्म। श्योर कि वो फर्स्ट 45 मिनट्स जो है वो अपना पूरा 100% एनर्जी के साथ खेलेगा वो। एंड अगर ऐसा हो जाता है, अगर उसके थ्रू जो है, जो अभी तक सिंक्रोनाइजेशन मैनचेस्टर यूनाइटेड मिस कर रही थी पिछले 2 गेम्स में, अगर वो सिंक क्रिएट कर देता है, क्योंकि अगेन दे आर प्लेइंग नॉटिंगम फॉरेस्ट, दे आर नॉट प्लेइंग मैनचेस्टर सिटी, नॉटिंगम फॉरेस्ट है। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए परफेक्ट चांस है अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए। दे विल बी प्लेइंग विद 3 प्रॉपर मिडफील्डर्स जो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे खेलेंगे। कैस्मीरो एज अ डिफेंस मिडफील्डर खेलेगा, एरिक्सन कैन प्ले एज अ सेंट्रल मिडफील्डर, एंड ब्रूनो एज एन अटैकिंग मिडफील्डर। तो एक अच्छा सिंक क्रिएट हो सकता है बिटवीन द प्लेयर्स, और वो अगर हो जाता है तो आई एम प्रीटी श्योर दैट गोल्स विल कम देन। एंड प्लेयर्स के लिए एक मोरल बूस्टर हो गए आफ्टर द एम्बैरेसिंग डिफीट अगेंस्ट स्पर्स। ओके, बाय द वे, एक और हमारा स्टार्टर रूल्ड आउट है फॉर दिस गेम, और नॉट जस्ट फॉर रोयल दिस गेम। लुक शॉ लूक शॉ अगले कुछ मैचेस के लिए बाहर है, आई थिंक डी अराउंड 1 मंथ के लिए बाहर है वो। अह, अरे उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा यार ल्यूक शॉ का। ऑनेस्टली स्पीकिंग देख, एरिक्सन के आने से फर्क पड़ेगा देख मिडफील्ड में काफी, अगर वो खेलेगा तो। यार मैं भाई वो क्रिएटिविटी लेके आता है, एक वो सेंस ऑफ काम लेके आता है मैन्यू की ना मिडफील्ड में, जो मिसिंग रहता है। वो हैphazard वे में ना इधर उधर भाग रहे हैं, कोई सिंक ही नहीं लग रहा होता। जो वो आ जाएगा ना तो थोड़ा सिंक हो जाएगा मिडफील्ड, और उससे थोड़ा ब्रूनो भी फ्री हो जाएगा, और तो ब्रूनो अपना काम कर पाएगा। और आई थिंक बाकी विंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विंगर्स का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मैन्यू के लिए।
यार एग्जैक्टली। एरिक्सन के साथ मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स है एरिक्सन एट यूनाइटेड। मैं बस चाहता हूँ कि एरिक्सन अगर खेल रहा है तो उसको और प्लेयर सपोर्ट करें, उसको अकेला ना छोड़े, बिकॉज उसके पास अब हम्म। लेग्स नहीं बचे। जहाँ जैसी काउंटर अटैक होना शुरू हाँ, होगा, एरिक्सन भी आउट ऑफ द गेम। सो अब वो टीम भाग नहीं को सकता, वो भाग थोड़ा नहीं सकता माइंडफुल खेलेगा। हाँ, क्योंकि लेकिन उसकी एरिक्सन के साथ ये चीज है ना गाइस, दैट अगर काउंटर अटैक क्रिएट होता है तो वो एक जो की पास जो होता है ना निकालना वो एक प्लेयर निकाल का, देता है, निकाल देता है, चाहे वही वो तो थ्रू चाहिए बॉल जैसे एक होती है, भाई, वही एरिक्सन तो चाहिए मैन्यू को। एरिक्सन वो एक थ्रू पास निकाल सकता है, हम्म। एंड रैशफोर्ड एंड ब्रूनो देन उस काउंटर को आगे ले जाके दे कैन कन्वर्ट दोस बाकी जो चांसेस। दूसरा विंगर होगा, एंटनी होगा या जो भी होगा, उसको भी कुछ करना चाहिए भाई। राइट विंगर आउट ऑफ द गेम हो रहा है मेरे हिसाब से। लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम के थ्रू ही अटैक्स हो रहे हैं। अक्षर अक्षर मेरे मैं प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड को आई थिंक एक चेंज और करना चाहिए, kick Van Bissaka out of the squad at the moment and start with Dalot, क्योंकि हम्म। डायलॉग थोड़ा जो है अटैकिंग माइंडेड, और डायनामिक है थोड़ा। थोड़ा सा डायनामिक है। लास्ट गेम में दो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहे थे, है ना, हाँ, एंड देयर वाज वैन बिसाका एज अ राइट बैक। एंटनी के पास कोई सपोर्ट नहीं था, अकेला ड्रिबल करने लिंक की लिंक कोशिश नहीं कर बन रहा रहा था। था, लिंक नहीं बन रहा था, वो आउट। मैं बोलता रहा हूँ भाई, राइट विंगर गेम से आउट था, वो था ही नहीं गेम में, पूरे गेम में। वो एग्जैक्टली, गेम में कभी क्योंकि वो होता ही नहीं अकेला था, भाई। क्योंकि वो वैसे भी वो यार अकेला ही था। एंटनी यार भाई मैं तो कह रहा हूँ भाई, एंटनी को थोड़ा रेस्ट दे दो और सैंचो को खिला लो फिर से राइट में, यार एक चांस दे दो उसको दोबारा से। मैं इसे रेस्ट नहीं कहूंगा, किक हिम आउट ऑफ द हम्म। टीम भाई, उसको वो रेस्ट वही वाला यार, प्लेयर नहीं मतलब हाँ, है। रेस्ट एक तो दो उसको, मैच खिलाओ ना भाई। सैंचो को भी तो देखना पड़ेगा, उसने और रख दिया तो क्या करोगे। मैं कह तो रहा हूँ नहीं, देखो, सैंचो मेरे को हिसाब देखो से 2-3 मैच। सैंचो लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गार्नाचो। एंटनी को हम्म। थोड़े चांसेस और मिलने चाहिए, बच्चा है अभी वो, थोड़ा उसको टाइम लगेगा ग्रूम होने में। एंटनी को चांसेस मिलने चाहिए या मेरे देखो, हिसाब से, अभी यार एक तो गार्नाचो ये को इन्हें बताओ। स्ट्राइकर साइन करा, इनका स्ट्राइकर इंजर हो गया इंजर हो गए, इंजरी के यार थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। भाई। देखो तो यार, स्ट्राइकर अगर इनका होता भाई, इनको तो दो स्ट्राइकर साइन करने चाहिए थे। क्या कर रहे हैं, रैशफोर्ड ही खींचेगा क्या? 4 साल हो गए भाई रैशफोर्ड को। भाई रैशफोर्ड कितना को खींचेगा तो वो? एज अ स्ट्राइकर खेलना ही नहीं चाहिए, उसको तो लेफ्ट विंग पे खेलना तो चाहिए, वो स्ट्राइकर भाई मैं कभी था वही ही तो कह नहीं। रहा हूँ। तो एक भाई, एक तुमने अच्छा स्ट्राइकर साइन कर लिया 30-40 मिलियन का, एक कोई 10-15 मिलियन का ये साइन कर लेते या लोन पे साइन कर 40 नहीं लेते। भाई, वो 75 मिलियन में आया है। हाँ, 70 मिलियन में आया। एक कोई भाई 10-15 मिलियन वाला साइन कर लेते या लोन पे ले लेते, जैसे तुम करके देख चुके हो पहले कि भाई ये कैसा खेल रहा है। भाई बैकअप हो जाता, अभी वो खेल रहा होता, थोड़ा फॉर्म बन जाता। भाई अब मैं क्या बोलूँ यार ये तेरे थोड़ा को, स्ट्रैटेजी ना इनकी यूज समझ नहीं आ रही मेरे को यार। एक तुम स्ट्राइकर साइन कर रहे हो, तुम्हारा इंजर्ड हो गया तो भाई तुम 100 मिलियन का साइन करते हो प्लेयर, अगर वो इंजर्ड हो गया तो तुम, यू आर पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट बेसिकली। मैंने पिछली वीडियो में कम से कम 10 मिनट के लिए लगातार यूनाइटेड की ओनरशिप, मैनेजमेंट, ट्रांसफर स्ट्रैटेजी, भाई पूरी लिवरपूल की चीज भी पे है। चूतिया ओनरशिप है, और मैन यू की तो समझ ही नहीं आ रही क्या है भाई, वो तो भाई और नेक्स्ट लेवल है। लिवरपूल में तो ये हो गया था ना कि यार एक टाइम पे यर्गन पैसे क्लॉप नहीं ने दे रहे ना वो तो। एक एक स्क्वाड हाँ। बना लिया था अपनी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो हाँ, रहा। यहाँ तो यहाँ स्क्वाड पे ही नहीं तो बना अभी। ना टेन हैग कुछ कर पा रहा है और ना ओनरशिप, हाँ तो पता ही है तेरे को क्या है। बट भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि देख यार, तुम एट होम खेल रहे हो अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, जो कि वन ऑफ द कंटेंडर्स है टू गेट रेलीगेटेड दिस सीजन, या देख बेकार हाँ। तो खेल। भाई इनको तो तुम हम्म। भाई किसी को कहीं पे भी स्टार्ट करा दो। भाई 3 पॉइंट लेकर आओ, तुम कुछ भी करो भाई इनके इनसे। बाय हुक और बाय क्रुक, अगर तुम इनके साथ भी हम्म। 3 पॉइंट्स नहीं लेके आ रहे यार, देन यू लिटरली डू तो तुम नॉट डिजर्व टू तुम प्ले। तो यू आर यूजलेस हो। आउटसाइड टॉप 6 भाई, मेरे लिए टॉप 4 के तो बाहर हो अब तुम। ये मैच पे डिपेंड करता है भाई, ये मैच नहीं जीते ना अगर तुम, यू आर आउटसाइड टॉप 4 भाई। ये मैच तो और हमें, बोल भी रहे हैं, पंडित बोल रहे हैं, वो कह रहे लिवरपूल एंड मैन यू आर, दे सी देम एज आउटसाइड टॉप 4। मैं तो अब पता नहीं किसी कितना ट्रूथ है। मैं किसी टैक्टिक्स के ऊपर, किसी फॉर्मेशन के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर डिस्कशन करना ही नहीं चाहता। आई जस्ट वांट द टीम टू हाँ, गो आउट देयर, प्ले वेल एंड गेट 3 पॉइंट्स। भाई मैं एंड कुछ नहीं गेट थ्री जानता, पॉइंट बस। अब कोई गो एंड एक्सक्यूजेस डू नहीं योर है, जॉब। गो लिटरली एंड कोई गेट द एक्सक्यूज जॉब नहीं डन। है। हाँ। ये तो मतलब अगर तुम यहाँ पे भी नहीं जीत पा रहे यार, तो देन तुम तो चेंज लिटरली करना भाई, रिटायर हो एंटनी नहीं खेल रहा तो सैंचो को ला भाई, कुछ सब्स्टिट्यूशन कर भाई, बैठा रहता है वहां पे। जाओ। ना कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं कर रहा। गारनाचो भाई 70 मिनट तक भगा रहा है उसको, वो जो हेडलेस चिकन है, वो भागता रहता है इधर से उधर, बस दूसरों को भी भाग रहे हैं, खराब कर रहा है। कोई डिसीजन टैक्टिक्स मेकिंग नहीं, पूरी। कुछ नहीं। हाँ। तो अभी बॉडी लैंग्वेज सैंचो ही को क्या खराब है लेकर यार। आया ना सैंचो को भाई, मैं कह रहा हूँ हाफ टाइम में रिप्लेस करो भाई, अगर नहीं खेल रहा है एंटनी तो ला सैंचो को उठा के। भाई डायनामिक बनो थोड़ा, लीडरशिप शो करो अपनी। कुछ नहीं होगा तो अलग बात है भाई, कोई ये तो नहीं कहेगा कि चल भाई ये सब्स्टिट्यूट नहीं करा इसने। बहुत दिक्कत है भाई, एज ए यूनाइटेड फैन स्क्वाड ही मैं नहीं तुम्हें यूज बता कर रहा पा रहा हूँ। है यार अपना। अगर स्क्वाड यूज तुम ही नहीं कर पा रहा अपना। भाई, यू इट इज जस्ट लाइक यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि यही है और यही चल रहा है। हम कितने भी अपना ओपिनियन दे दो, कुछ भी बोल लो, बट एवेंचुअली टेन हैग वो करेगा हैग टकला हुई। हगता ही है, वो हैग है ना, हाग, हाँ। वो साला हगता ही है। मैं क्या बोलूं मैं तुम्हें। सो इट्स जस्ट कि यार बस वी जस्ट वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन, 10 ये बार सब। हकता है भाई, 10 हैग है, 10 बार हकता है।
तो भाई यही है, हाँ। इस पे ज्यादा कुछ एनालिसिस मैं कर नहीं सकता, जो भी है रिजल्ट भाई बताएगा। मैच के बाद करेंगे, देखेंगे क्या करती है मैन्यू, क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद बात नहीं, करेंगे इस पे। मैं होपफुल हूँ यूनाइटेड रिजल्ट लाएगी इस गेम में। दे मतलब एक अच्छी विन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम, क्योंकि अच्छी विन अगेन तो भाई मैं नहीं कर रहा एक्सपेक्ट, आई एम मैं भी स्टिल नहीं कर रहा, एक्सपेक्टिंग अ 2-1 विन। क्योंकि टू कुछ वन नहीं, भी देखो, हो मैं जाए तो मैं मानूंगा नहीं चल नहीं भाई कुछ actually, हो गया। नहीं यार नहीं, आई वोंट बी दैट हार्श। भाई मैं आर्सेनल एक भी अच्छी 2-1 ही विन जीती एक्सपेक्ट थी, कर रहा हूँ। नॉट तन्मय से। हाँ एविडेंस भी तो कुछ होता है, एविडेंस क्या है तेरे हाँ, पास? वही तो कह रहा हूँ मैं। कुछ खेला ही नहीं नहीं, यूनाइटेड ने। आई एग्री, लेकिन फिलहाल जो करंट भाई सिनेरियो पास्ट जो ग्लोरी पे मैं है। रिलाई नहीं करता। अभी देखो अभी क्या चल रहा है। पास्ट ग्लोरी गई तेल लेने। नहीं नहीं, पास्ट ग्लोरी की बात नहीं कर रहा, एक मैं पास्ट को भी माइंड में रख रहा हूँ कि पास्ट में जिस तरीके से यूनाइटेड पिछले 10 साल, भाई 10 साल से ही चल रहा है ये, वो पास्ट यार में पर ही दस आता है साल से 10 साल मैन्यू से। टॉप 4, भाई फोर्थ फिफ्थ तो थर्ड थर्ड तो आ जाती है। इस बार तो देखना हाँ, क्या नहीं नहीं, स्टार्ट करी है मैं यूनाइटेड उस ने। सब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं करंट जो इस वक्त टीम का स्ट्रक्चर है, फिलहाल इंजरीज जो हुई हैं उन सबको माइंड में रख के बोल रहा हूँ। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट है नॉट अ वेरी बिग ओपोनेंट, ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल रहे हैं, तो आई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑनेस्टली टेलिंग, मैं एक अच्छा रिजल्ट फ्रॉम यूनाइटेड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है देख, अक्षय बाउंस बैक हो सकता है। लास्ट सीजन वी लॉस्ट द हाँ फर्स्ट टू भाई मैं कब मैचेस, मना कर रहा हूँ, नहीं हो हारे ही सकता थे, बट। हाँ एविडेंस के वही हिसाब है से कि लग नहीं रहा। ब्रेंटफोर्ड से मैं थोड़ा 4-0 हार क्रिटिकल के, डाल मैं थोड़ा क्रिटिकल रहता हूँ फिर भी, सो दैट। ओनली फॉर यूनाइटेड आई नो। नहीं नहीं, फॉर एवरीवन आई एम क्रिटिकल फॉर लिवरपूल एज वेल। हाँ, ओके, इट्स ओके। एंड गाइस, ठीक है, यूनाइटेड का तो कर लिया हमने डिस्कस, देखते हैं कैसा करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, इट इज यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, एंड इट्स नॉट मैनचेस्टर बट शेफील्ड यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। सो पोपट हो गया। ठीक दे है, आर मैं भाई, अपनी analysis को, दे आर मोर यूनाइटेड देन मैनचेस्टर यूनाइटेड, द या टीम प्लेयर्स स्टिल। the most united, I एग्जैक्टली। guess it's you can Newcastle United at the moment, the most united. दे स्टिल लॉस्ट टू सिटी। Yeah, come on, beating City at Etihad is not a joke for any team. So बहुत मुश्किल है वो चीज करना. Let's not be so harsh on them. Anyways, मैं अपना एनालिसिस जो है वो तो खैर बाद में दूंगा. Being a fan, I would want you guys to start. तो अक्षय, तेरा क्या कहना है? What's your analysis about this game? नो एनालिसिस, आई थिंक मैन सिटी विल बीट द शिट आउट ऑफ द अदर यूनाइटेड। दैट्स माय वन लाइन एनालिसिस। आदर्श? हाँ वैसे तो देख यार, जीतना तो मैन सिटी नहीं है। दिस शुड बी एन इजी गेम फॉर देम इवन दो दे आर अवे फ्रॉम होम। बट इज बर्नार्डो सिल्वा प्लेइंग इन दिस मैच? इज ही बैक? इलनेस थी, मोस्ट प्रोबेबली अभी कोई कंफर्मेशन आई नहीं है. या इवन खेलेगा रिगार्डलेस ऑफ यार। दैट, आई थिंक मैन सिटी विल एंजॉय अ लॉट ऑफ पोजीशन, क्योंकि मैन सिटी के अगेंस्ट शेफील्ड यूनाइटेड क्या ही कर सकती है। दे विल वही। जस्ट पार्क द बस एंड सी इफ दे कैन चल ना काउंटर भी अटैक। खेले, चल नहीं खेल रहा बर्नार्डो सिल्वा, अब बता क्या कर सकती है शेफील्ड यूनाइटेड वही मैं कह रहा हूँ मैन ना, सिटी के against। चाहे खेले चाहे ना खेले, all they will हाँ do is just one thing, they will park the bus 9 players behind the ball and they will wait for an हाँ। opportunity। और फिर वो भी, उसमें भी वो likelihood है कि जब तक उनको opportunity मिलेगी मैन सिटी would be already 3-0 4-0 up। 5-4-1 तो खेलेंगे शेफील्ड। अरे कुछ भी कर लो भाई, 1-10 खेल लो, खत्म करो। 1-10, will not make 10-1। a difference। एग्जैक्टली क्योंकि यार शेफील्ड यूनाइटेड ज्यादा इन्होंने स्पेंड किया नहीं है, दे हैवंट बॉट एनी न्यू प्लेयर, मैनेजर भी कोई बिग दे टर्म जस्ट, साइनिंग नहीं है। उनको भाई तो रहना है बस प्रीमियर लीग में उनको। हाँ, उनका बस सर्वाइवल मोड है, और बस। दे विल नॉट बी फुलिश टू प्ले अ ओपन गेम अगेंस्ट मैन सिटी। तो ठीक है, जितना एज मच एज दे कैन दे विल ट्राई टू कंटेन देम, बट द क्वालिटी विल फाइनली rise on the top, और Man City will take the game away from them very quickly। So ज्यादा कुछ एनालिसिस करने का है नहीं, away from home है, लेकिन still यार there is a big difference in the हाँ quality of players। So क्वालिटी I see a very comfortable easy win for Man City। और हालैंड जो अपनी फ्रस्ट्रेशन अराउंड। पिछले मैचेस में चल रही है ना, जो गोल नहीं मार पा रहा है, यहाँ वो हालैंड निकालेगा। हैट्रिक कमिंग, हालैंड हैट्रिक कमिंग एंड आई थिंक इट विल बी 4-0। Yes, I also think मैं that। स्कोर प्रेडिक्शन तो बाद में ही करेंगे ऑब्वियसली, बट कर या दी यार साथ में, कोई नहीं। आई एग्री, आई एग्री विद यू गाइस। इजी होनी चाहिए मैनचेस्टर सिटी के लिए. मैन सिटी के साथ अभी थोड़ी दिक्कत ये है हो रही है दैट क्योंकि उनके जो की मिडफील्डर्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है. देयर इज नो कंफर्मेशन अबाउट बर्नार्डो सिल्वा आल्सो, एंड डे चिल ब्रुयने तो मैन, इट्स कम ऑन लॉन्ग. यार, तनवीर शेफील्ड मैन, सब नो नो मिडफील्डर यार, उनके इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी। शेफील्ड अच्छे, लेकिन होम पे होगी वो कंप्लीट बस पार्क करके रख दे. जब बस पार्क कर देती है ये टीम, देन बहुत मुश्किल होता है उसमें हालैंड है ना एकदम भाई, से ऐसे चांस हालैंड है क्रिएट ना, करना. हालैंड हालैंड तो कब काम फाइनल आएगा। फाइनल फिनिश के लिए ना, लेकिन हालैंड को पास आने देंगे ये लोग या नहीं, वो वो एक मैटर ग्रिलिश, है. ग्रिलिश विल टेक केयर ऑफ दैट।
I think it's his Foden, game. Grealish, अभी फोर्डन, ग्रिलिश, एल्वारेज, फोर्डन तो भाई नेक्स्ट लेवल प्लेयर लगता ही है, और चल वो है कोई ही। नहीं, तन्मय को एक बार अपना वो करने दे। चल हाँ, फिर अपन रॉड्री पॉइंट्स है, करेंगे। राइट, रॉड्री है। होनी चाहिए इजी विक्ट्री, आई थिंक। आई रियली होप जो बस पार्क करेंगे उसको, उससे निकाल लेंगे ये लोग जो हाँ, है वही इजी मेन है बस, वो केसेस निकाल निकाल ले, लेंगे यार, तो बाय हुक और बाय क्रुक। yes, an easy victory for Manchester City, honestly। 4-0 मेरे को बहुत ज्यादा, इजीली। मैं nothing to be very honest, nothing to be very much worried about for me यस, as a fan। एग्जैक्टली। So I'll be watching that match एक pleasure के तौर पे कि I hope I'll be watching a lot of those passes, key passes, one two, and एक आदर्श जो तू बात कर रहा था कि एक अच्छी फुटबॉल खेलना, मैं उस एक अच्छी हाँ, फुटबॉल की एक्सपेक्टेशन पे वो गेम देखूंगा, एंड आराम से चिल मार के देखूंगा आराम से। तो विद अ ग्लास ऑफ टू ऑफ सम बियर, पॉसिबली। yeah, some beer and some सम tandoori कबाब्स एंड chicken, some या tandoori chicken, some beer। या शाम में गेम होगा वैसे तो, so I माहौल would माहौल prefer बनाएगा पूरा। a scotch rather, I would say, with some tandoori chicken, और सम some सिंगल some मॉल्ट। prawns। या So easy victory for them। एग्जैक्टली। I think we should talk about a couple of other matches, just because they can also influence हमारे results पे भी उनका effect रह सकता है। So as we are recording this video, Chelsea has already started playing against Luton Town. न्यूटन। So ये तो इट्स लाइक अ डेविड एंड ग्लॉयथ वाली स्टोरी नहीं है जो हाँ, राजा और चो वाली कहाँ राजा भोज, कहाँ राजा और गंगू रंक तेली। वाली राजा हुई ना रंगू तेली। ये तो वो वाला मैच है। मतलब लिटरली जितना चेल्सी के एक प्लेयर की वेज होती होगी ना हफ्ते की, इनके सारे प्लेयर्स की मिला के होगी। तो उतनी भी नहीं होगी भाई, उतनी उससे भी भी नहीं होगी। ज्यादा होगी चलती के एक प्लेयर की। चेल्सी इज ऑलरेडी 1-0 अप आई थिंक इन द मतलब फर्स्ट हाफ। यहाँ मतलब से ए, अगर हाँ एक चेल्सी मतलब 12 लूटन टाउन। भाई क्या बात कर रहा है, एक चेल्सी मतलब कम से कम 20-25 लूटन टाउन्स। एनीवे, भाई साहब, जोक्स अपार्ट, हमें डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करनी चाहिए किसी टीम की, बट एनीवे आई थिंक दिस शुड बी अ वेरी And your winner scored the goal। रहीम स्टर्लिंग। आई एक्चुअली थॉट दैट रहीम स्टर्लिंग वुड बी रहमान गोइंग। रहीम। ये देख, तुम रहीम स्टर्लिंग को कुछ भी बोल लो भाई, इन द फर्स्ट टू मैचेस एंजो फर्नांडिस को छोड़ के मुझे सबसे जो बेस्ट प्लेयर लगा है चेल्सी का दिस सीजन इज रहीम स्टर्लिंग। जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है मैचेस को, ही इज ट्राइंग थिंग्स एंड ही इज लुकिंग डेंजरस। तो इट्स गैलेगर भी सही लग रहा है भाई इस मैच में तो। या लूटन टाउन के अगेंस्ट तो भाई रहीम स्टर्लिंग विल बी लुकिंग लाइक प्राइम लूटन मेसी। टाउन, मेरे को नाम सुन के ऐसा लगता है कि थर्ड डिवीजन की टीम है। नेमार, नेमार, he is looking like नेमार। नेमार और नेमार तो भाई क्या है यार, चैंपियंस लीग से हम्म, एशियन प्रीमियर लीग में आ रहा है, वो पुणे एफसी के अगेंस्ट मैच खेलने आ रहा है यहाँ पे इंडिया में। क्या क्या उसकी औकात हो गई यार। अभी टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करते पुणे हैं। एफसी मैन, कम ऑन नेमार। कोई नहीं, चलो let's not एनीवे, वो divert भी the इंडिया में topic, guys। खेलेगा। Come on, let's stick to Premier League, guys। Come on, let's stick to Premier League। ओके पुणे ओके ओके। एफसी के बाद बात करेंगे। ठीक है। तो चेल्सी का यार देखो, आई डोंट थिंक एवरीबॉडी नीड्स टू गिव एन इनपुट ऑन दिस। इट शुड बी अ कंफर्टेबल विन फॉर चेल्सी। लूटन टाउन पहले दो मैचेस में भी कुछ प्रूव नहीं किया, लॉस्ट बोथ देयर first both of the first matches, so I think it should be comfortable for Chelsea. Another match is hold on is Arsenal at home against Fulham. The Fulham of last season was a different kettle of fish totally, but this season नहीं यार, वो दम नहीं है फुलम वेयर में। ऑफ कर गए थोड़ा, बहुत वेयर ऑफ कर गया यार, मिट्रोविच बट था इनके पता नहीं अभी पास। मे बी अभी स्टिल अर्ली डेज है। 10 सीजन, जब 10 मैच हो जाएंगे तब देखते हैं कि क्या करते हैं ये। आर्सेनल होम पे यार, आई डोंट सी एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम एन आर्सेनल विक्ट्री इन दिस मैच, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हाँ, आर्सेनल विल विन प्रोबेबली। आई तन्मय, थिंक जीसस भी शायद वापस आ रहा है। गैब्रियल जीसस इज आई गेस कमिंग आ बैक। गया ट्रेनिंग में, ये बट तो खेलेगा नहीं खेलेगा पता नहीं। या स्क्वाड में तो आ रहा है वो, सो आई गेस ही वोंट स्टार्ट, बट सेकंड हाफ में ही माइट कम। सो हम्म। एनीवे, सबसे पहले आर्सेनल के केस में मैं पहले गेम के बाद से एक ही चीज बोल रहा हूँ, दैट बाहर करो काई हैवर्ट्स को एंड गेट समवन लाइक ट्रोसार्ड। जॉर्जिनो और थॉमस पार्टे and start with Trossard as a center Yeah. forward। मैं वही चीज करनी चाहिए, अगर ऐसा होता है इट विल बी एन इजी विक्ट्री। पार्टे तो और सही खेल रहा है यार, बट एंड इवन इफ वी आर पार्टे नॉट
पार्टे राइट बैक खेल रहा है यार, बट अच्छा खेल रहा है। यार अभी ऑप्शन नहीं ना, अब तोमायासु को रेड कार्ड मिल चुका है, राइट? हम्म। एंड टिम्बर भी इंजर्ड है। बेन वाइट हम्म। खेल सकता है राइट बैक पे, बेन वाइट और माइट प्ले एज राइट बैक। आर्सेनल ढूंढ रही है, आई थिंक पेर शेयर्स है टोरिनो का डिफेंडर, उसके पीछे आर्सेनल भी और लिवरपूल भी। लिवरपूल में तो मेरे को भरोसा है नहीं, आर्सेनल माइट हो सकता है कि साइन कर ले, हम्म। तो ही नहीं यार, कैन लेट्स बी अ सी, गुड बट साइनिंग। मेरे easy victory for Arsenal, I guess. आई थिंक आर्सेनल शुड नॉट बेंच देयर स्ट्राइकर एनकेटिया यार, बंदे Nketiah, वो सही खेल रहा है। देख लास्ट मैच में भी 1-0 से जीती आर्सेनल, एंड ही वाज द वन हु गॉट दैट पेनल्टी, ही वॉन दैट पेनल्टी। सो भाई उसको yes. बाहर निकालना वुड नॉट बी द राइट वे थिंग। अगर तो तुम्हें Yes. ट्रॉसर्ड ट्रॉसार्ड को लाओ ना फिर, ट्रॉसार्ड हैवर्ट्स की हाँ, तो जगह, हैवर्ट्स की जगह पे तुम ट्रॉसार्ड। या फोर टू और थ्री वन खिलाओ और ट्रॉसर्ड को लेफ्ट में खिलाओ या सेंटर में खिलाओ, हैवर्ट्स उसके यार पीछे। तुम फुलम के अगेंस्ट होम पे खेल रहे हो, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ट्राई ट्रॉसार्ड इन दैट मिडफील्ड रोल आल्सो यार, क्या पता यहाँ पे फ्लरिश करके दिखा दे। एंड अगर वो दिखाता है तो यू कैन गिव हिम चांसेस इन द फ्यूचर। तो यही मैच है एक्सपेरिमेंट करने का भाई। यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट न्यूकैसल और मैन सिटी और यूनाइटेड और लिवरपूल, तो यहाँ पे करो ना फिर। कब तक kai Havertz को चांस दोगे? उसको फर्स्ट टू बोथ मैचेस Arteta ने 90 मिनट्स खिलाए, ही डिड नॉट डू एनीथिंग। लकी फॉर आर्सेनल दे वन बोथ द मैचेस, बट ही हैज टू ट्राई मोर थिंग्स यार। वो इतना स्टबर्न नहीं हो सकता अपनी अप्रोच के साथ तो। वो डायनामिक नहीं है यार बिल्कुल भी, जो लग नहीं रहा, जो उसके बारे में बोलते थे जर्मनी में कि भाई ऐसा करता है ये वो ये करता है, मेरे को तो नजर नहीं आया यार उसके गेम में। बहुत लिमिटेड काय गेम लग रहा है मेरे को उसका यार। आई थिंक एक It's तो कॉन्फिडेंस, overrated talent. ओवररेटेड है हाँ। क्योंकि मुझे भी लगता था यार कि इसका शायद कॉन्फिडेंस कम है, ही विल कम अप गुड, बट यार वो जेन्युइनली उसका एक तो विजन उसका नील बटा सन्नाटा है यार, वो बंदा पता हाँ ही नहीं नहीं चलता है उसे एग्जैक्टली। उसके आसपास कौन है, ही डजंट नो। वो एक प्लेयर को बस फोकस करके चलता है कि भाई इसी को डब्बा पास दो। गोल है भाई उसका। हाँ, उसका विजन ही हाँ, नहीं है कोई। तो आई थिंक ही शुड बी बेंच्ड यार। अब कितना मतलब यार, और को भी तो चांस देना चाहिए। ट्रोसार्ड बेचारा क्या है, भुट्टे सेक रहा है क्या बेंच पे बैठ के? तो उसको हाँ चांस दो। सही बात है। ही माइट ही, और मैं लिटरली बता रहा Exactly. हूँ, अगर उसको चांस दोगे गोल भी मार के दिखा देगा तुम्हें इन द वेरी फर्स्ट भाई मैच ओनली, दिखा, उस टाइप का अबे प्लेयर है वो। भाई 2 गोल मार के दिखाएगा वो, कम से कम। तो दे शुड स्टार्ट हिम ऑब्वियसली। एंड एक चीज अच्छी हुई है, वन थिंग आई एम रियली पॉजिटिव अबाउट आर्सेनल इज डेक्लन राइस। जिस तरीके से लास्ट मैच पे कमांड कराया उसने प्रीवियस गेम में, एक पॉजिटिव साइन है आर्सेनल के लिए। यार पिछला गेम ठीक है टफ यार, गेम वो था, जैसा आर्सेनल है जीत वैसे ही गया खेला है, था। उसने कुछ ऐसा एक्सेप्शनल भी नहीं करा, बट नहीं यार, नहीं, कुछ बुरा चीज भी नहीं करा। सही है, कमांड नहीं यार, मिडफील्ड पे कमांडिंग था वो इन द प्रीवियस कमांडिंग गेम। भी था, एंड ही उसका वाज काम द है यार वो। ओनली। नहीं यार, देख अक्षय, देख मैंने खुद बोला है, मैं डेक्लन राइस का कोई फैन वैन कुछ नहीं हूँ, बट इन द लास्ट मैच ना यार, कि जहाँ पे बहुत ही एक टाइट गेम था, ही वाज द ओनली वन फ्रॉम द मिडफील्ड, इवन मोर देन ओडेगार्ड, हु वाज ट्राइंग टू टेक द बॉल फॉरवर्ड, और वो रिस्की पासेस उसी ने लिए थे यार, मैं सही बता यार रहा हूँ। ओडेगार्ड तो फॉरवर्ड ही लेके जाएगा ना बॉल, उसका काम ही, जिसका जो नहीं ले काम है जा वो रहा वही तो था, करेगा। नहीं कर रहा था ना, उससे ज्यादा डेक्लन राइस कर रहा था। मैं वही तो तेरे को बता रहा हूँ कि लास्ट मैच में ही बट परफॉर्म। डेक्लन राइस वो करेगा तो फिर उसकी पोजीशनिंग खराब हो जाएगी, अपनी पोजीशन में भी तो रहना है उसको। पर भाई पिछले मैच में तो उसका काम क्रिस्टन, है बॉक्स टू बॉक्स भागना, उसका काम है बॉक्स टू बॉक्स भागने का। मिड डिफेंस मिडफील्डर है, यार बट लेकिन वो वो खेल कोई तो नंबर ऐसा 6 रहा है, पोजीशन में रहा है ऑथेंटिक, ना, डीएम खेल अक्षय रहा है वो वो। भाई तो अक्षय ये वो कोई ऐसा ऑथेंटिक मिडफील्डर नहीं है जो डिफेंस लाइन को सपोर्ट करने के लिए वहीं खड़ा रहेगा। नहीं, वो भागता नहीं है, वो उसका काम है भागना। देख अगर भागेगा, बट स्टिल थोड़ा पोजीशनिंग रखनी पड़ेगी यार, आर्सेनल है, वेस्ट हैम नहीं है। वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर सामने वाली टीम अपने ही हाफ से बाहर नहीं निकल रही, तो वो क्या करेगा अपने हाफ में रह के? वो हाँ भी तो वो फिर इन पुश दैट फॉरवर्ड केस, करेगा। हाँ दैट केस इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हम्म। एग्जैक्टली तो डेक्लन राइस के केस में मुझे एक डेक्लन राइस का मुझे एक पॉजिटिव साइन दिखा है, दैट यस आई थिंक जो स्टबन था मिकेल आर्टेटा टू गेट डेक्लन राइस, अब समझ में आ रहा है क्यों था। एंड अगेन कंसिडरिंग फुलहैम है, आई थिंक इजी विक्ट्री फॉर आर्सेनल। बुकायो साका फॉर्म में चल रहा है, मार्टिनेली फॉर्म में चल रहा है, ओडेगार्ड भी अच्छे डिसेंट फॉर्म में चल रहा है, डेक्लन राइस फॉर्म में है। तो आई आई डोंट थिंक आर्सेनल शुड बॉटल इट आई अप। थिंक इजी तो नहीं होगा, बट नहीं, इजी विक्ट्री क्लोज अक्षय, होगा फॉर मी मार्जिन। इट विल बी इजी विक्ट्री, फॉर मुझे एज पर मुझे मी इट विल बी। इस वाले में मुझे भी इजी विक्ट्री लग रही है, बट एनीवे लेट्स डू द मैच प्रेडिक्शन, एंड आल्सो आफ्टर दैट लेट्स डू द क्या वो, वी कैन डू द सेगमेंट की व्हिच विल बी द बिग, आई थिंक प्रेडिक्शन ट्रांसफर न्यूज एज वेल आदर्श, हमें थोड़ी ट्रांसफर न्यूज भी कवर करनी है ना। अराउंड प्रीमियर लीग, अराउंड आवर हाँ, क्लब्स, और अराउंड हाउ? प्रीमियर लीग, या अराउंड प्रीमियर लीग, दो चार अपडेट तो प्रीमियर लीग के ही हैं और हमारे क्लब्स को यार लेके एक हैं। तो ट्रांसफर न्यूज यही है कि आर्सेनल इज लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट फॉर जूरियन टिम्बर, ये सबसे बड़ी ट्रांसफर न्यूज यही है। एंड एंड लिवरपूल आर डोकू आल्सो लुकिंग एट अ डोकू हैज डीएम। साइंड फॉर मैनचेस्टर सिटी।
हाँ, Jeremy Doku is again a big news Yeah. for Man City. He's And Aymeric Laporte has finally signed left for and he yeah, joined Al Nassr, joining Ronaldo. yeah. अरे, And डोकू I तो think यार Man U and Liverpool will sign to at least one more player. At least यार might sign two as well. सीडीएम तो चाहिए देख यूनाइटेड को तो वो कौन है यार एमराबाती तो है उसके साथ Amrabat. उसका यार कुछ फिक्स लग नहीं रहा है अभी तक कोई वो पॉजिटिव एटीट्यूड न्यूज़ में लग आई रहा है उसका, मेरे को तो एजेंट वो ना वैल्यू बढ़ाना चाह रहा है, ज्यादा सैलरी चाह रहा है वो ना बहुत एटीट्यूड में है उसका एजेंट यार, एजेंट की गलती अमराबाद नहीं है का। भाई देख तू भी उसकी जगह पे होता तू भी तो यू वुड लाइक टू मेक मोस्ट मनी आउट ऑफ द सिचुएशन यूनाइटेड की गलती है ना यार अब तुम सीजन तो यार खत्म स्टार्ट भाई यूनाइटेड के लिए खेलने को भी तो मिल रहा है यार, अभी कहाँ खेल रहा है वो देख। भाई पैसा और आज अगर ये ना भाई सिमिलर कितना पैसा सिचुएशन होने पैसा नहीं दे वाली है रही तो होगी लास्ट यूनाइटेड उसको। सीजन नहीं ये नहीं वो सिमिलर सिचुएशन होने वाली यूनाइटेड के साथ जो लास्ट सीजन हुआ था व्हेन ट्रांसफर विंडो स्टार्टेड। एंटनी 60 मिलियन में अयाक्स ऑफर करी थी कि 60 मिलियन में उन्होंने ले लो मना कर दिया था। एंड इन्होंने एटीट्यूड दिखा के मना कर दिया था। उसके बाद जब सैंचो की फॉर्म देखी तो फिर ये थोड़े से देन वो हो गए डेस्परेट हो गई यूनाइटेड एंड वो 100 मिलियन में आया है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ वो यूनाइटेड को और ज्यादा डेस्परेट करेंगे जैसे जैसे टाइम निकलेगा यूनाइटेड आज 650 दे रही है वो कल 60 70 80 तक दे देगी उसके लिए तो उसी चीज का वेट कर रहे हैं वो कह रहे 4-5 दिन और बचे भाई कुछ भरोसा नहीं है हैरी मैगवायर को भी तो 80 में लिया था 2018 में तो उससे तो बेटर ही है और ज्यादा भाई जरूरत नहीं लिवरपूल पे तो मैं कोई बाकी कमेंट नहीं करना चाहता, इतने इतने रूमर है ट्रांसफर, भाई मैं पागल हो चुका हूँ। ये मिडफील्डर वो मिडफील्डर, सालो साइन तो कर लो एक। न्यूज न्यूज फैलाते हैं बस। फेक मोइसेस कैसेडो साका बिल्कुल फेक थी, दिखाने के लिए कि हमने पैसा फेंक दिया, बट हम साइन नहीं कर पाए, सब फेक था। उनको पता था कि वो नहीं करेगा साइन उनके लिए। मुझे तो लग रहा है लिवरपूल की जो डिफेंसिव मिडफील्ड साइनिंग है वो बिल्कुल या तो लास्ट डे पे या लास्ट फ्यू आवर्स में फाइनलाइज होगी अगर होनी होगी तो क्योंकि लग नहीं रहा मुझे टाइमली कुछ होने वाला है कोई यार रायन ग्रेवेनबर्च क्या एक बेकार प्लेयर है यार, रायन ग्रेवेनबर्च लेवल भी नहीं है लिवरपूल के लेवल का यार, वो बायर्न में भी फोर्थ चॉइस है वो। तो भाई यही होता है व्हेन यू वेस्ट योर टाइम व्हेन यू आर डीलिंग विद चेल्सी चेल्सी के साथ तो अगर तुम्हारा कंपटीशन है ना पहले बाहर हो जाओ रेस में से साइड हो जाओ कुछ भाई, होना नहीं है तो जस्ट कंसीड डिफीट। क्योंकि जितना ज्यादा तुम इधर इट्स डेस्परेट चेल्सी और मैन सिटी। तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा भाई। मैन मैन सिटी भी इतना नहीं करती है, तन में क्या बात कर रहा है उसने, हालैंड को 60 मिलियन में साइन करा है और डोकू को नहीं 60 मिलियन में, नहीं, और क्या अगर करा है। कंपटीशन आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर ट्रांसफर के कंपटीशन मैन सिटी या चेल्सी है, मैन सिटी भी अगर कंपटीशन में फॉरगेट इट, आप नहीं ले पाओगे प्लेयर्स क्योंकि भाई मैन सिटी टर्म्स पहले एग्री कर चुकी होती है। मैन सिटी ऐसे प्लेयर को के यार पीछे मैन सिटी जाती के ही पास नहीं पुल है ना अभी, चेल्सी के पास वो पुल नहीं है, बट चेल्सी के पास फिर पैसा है। यार मैन सिटी में ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं पिछले अगर डेक्लन राइस को भी मेरे को याद नहीं है शायद और कोई कंपटीशन में था भी नहीं डेक्लन राइस के मैन सिटी ही को ही जाना चाहता था वो अदरवाइज मैन सिटी तो compete ही नहीं करती किसी प्लेयर के लिए यार वो पहले आइडेंटिफाई करके नहीं निपटा करती। लेते हैं मामला हाँ ये हम्म तो है। ये तो जो पब्लिकली करती है ना ये भिड़ती है ये है लिवरपूल बस वैन यूनाइटेड डाइक के लिए आर्सेनल हुआ था ये, वैन डाइक के लिए मैन सिटी पीछे पड़ी थी, बट उसने लिवरपूल के लिए साइन कर दिया था, जैसे काइसेडो ने चेल्सी के लिए करा है। उसके बाद मैन सिटी का मैंने कोई नहीं देखा कि ऐसा कुछ हुआ हो। डोकू के उनके बारे अपने में टारगेट क्या होते हैं थॉट्स है तुम्हारे भाई स्पीड तो भाई, है बंदे के बहुत पास इलेक्ट्रिक बट है ट्रिक भाई, बस की फिर एंड प्रोडक्ट नहीं है, मतलब सॉर्ट ऑफ यंग स्टर्लिंग। नहीं ऑनेस्टली बताऊं, लेस्टर सी आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेस्टर सी आ रहा है ना। हाँ 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 लेस्टर से आ रहा है वही सेम चीज लेस्टर से आ आई रहा गेस। लेस्टर से आ रहा है वो। है, अबे लेस्टर से थोड़ी, प्रीमियर लीग में थोड़ी था यार। लोन पे था तो लेस्टर प्रीमियर लीग में का प्लेयर था वो, डोकू। लेस्टर का है। हाँ हाँ लेस्टर पे था भाई मैंने ज्यादा लेस्टर खेल में नहीं कहाँ खेला वो। भाई लेस्टर में ही लोन पे था शायद ज्यादा खेल नहीं पाया नहीं, खरीदा था खरीदा था अरे खरीदा था। रेनेस में था भाई ये, लेस्टर में नहीं था। फ्रेंच उससे आया है ये, लीग से। मे बी हो सकता है रेनेस से लोन में आया गया भाई, हो तो लेस्टर में जैसे नहीं था एक ये, रेनेस से आया, रेनेस से। फिर ये हो सकता है कि लोन पे लेस्टर में गया हो क्योंकि डोकू जहां तक मे मुझे बी याद है। हाँ ऐसा, बट मेरे को कोई न्यूज आई नहीं ऐसी, तो रेनेस में ही था मेरे हिसाब से। एनीवेज खेला जो भी था भी वो, है खैर, बट बहुत इलेक्ट्रिक है स्किलफुल भाई, बहुत पेसी स्किलफुल विंगर है। स्किलफुल है, हाँ पेसी स्किलफुल है। भी अरे है, अरे सॉरी बट सॉरी रॉ है वो थोड़ा। पता है कौन था लेस्टर फाइनल वाला एंड वो क्योंकि यंग है। डाका था डाका एक अबे डाका ये था भाई कहाँ, डाका अबे था यार तुमने कहाँ मिक्स कर दिया, वही मैं कहूँ लेस्टर में कहाँ से आ गया। वो डाका डोकू रेनेस से डाका आया है डाका भाई वो। हाँ ये डोकू रेनेस में था या 100%। वो डाका था यार आदर्श कट कर डाका दियो। अबे वो डाका कट कब कर आया दियो, कब आदर्श निकल कट गया पता दियो। भी नहीं चला। दैट्स हाँ वो फाइन, डाक आदर्श कट कर दियो इस पार्ट को। अबे वो साफ हो गया वो भाई, उसको कुछ नहीं कर पाया वो। तो ये अलग है एनीवेज, ये। हाँ कमिंग बैक, सो इलेक्ट्रिकल है, एज यू ऑल मेंशन, डाकू है भाई डायनेमिक ये, है, डोकू नहीं है, स्किलफुल डाकू है है। ये, सो पूरा डाकू है।
skillful है। वीडियो बना रहे हैं भाई, वीडियो बना रहे हैं, जोक्स बाद में मार लियो तो। भाई तो डाकू ही है और क्या है वो, देखियो अभी क्या करने वाला है वो। अबे उसको अक्षय अगर चांस वीडियो देगा बना रहे हैं गार्डियोला। यार, अपलोड करेंगे, गप्पे थोड़ी मार रहे हैं बैठ के जो तू। भाई गप्पे नहीं मार रहे तो क्या हो गया, नेचुरल जो आ रहा है वो बोल रहा हूँ मैं। भाई मेरे को तो रात को 3 बजे तक बैठ के एडिट करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा डाकू डाकू कहाँ बोला तूने। अबे भाई बस। नहीं करनी पड़ेगी, रॉ रहो थोड़ा, इतना कॉन्शियस मत हो तुम। अरे कॉन्शियस की बात नहीं है भाई, कुछ कुछ चीजें तो देखनी पड़ेगी ना। चल ठीक है, अबे कंटिन्यू। एनीवेज हाँ, सो इलेक्ट्रिकल है, डायनामिक है, स्किलफुल है, ड्रिबलिंग आती है। एंड हम्म रही बात फाइनल प्रोडक्ट की, पेप के अंडर रह के सीख ही जाएगा फाइनल प्रोडक्ट करना भी। जब रहीम स्टर्लिंग को फाइनल प्रोडक्ट जो है सिखा सकता है, जो जो आदमी स्टर्लिंग को जो फाइनल प्रोडक्ट सिखा सकता है ना, जो आदमी, वो किसी को भी सिखा सकता है। वो तुम कोई भी लाके खड़ा कर दो, तुम लुकाकू को लाके खड़ा कर दो, ये बंदा लुकाकू का फर्स्ट टच भी ठीक कर सकता है, लकाका का भी, सॉरी। लगा सो का या। सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अच्छा कर लेगा। फ्यूचर साइनिंग है ऑनेस्टली बताऊं तो। हम्म एंड प्रॉपर एक मारेज की ही रिप्लेसमेंट लेके आए हैं ये लोग, प्रॉपर हाँ मारेज रिप्लेसमेंट। पकेटा वाला कैंसिल हो गया था वो, एंड दे आर ट्राइंग अनदर मिडफील्डर नाउ। पेप ने का ही स्टेटमेंट आ गया था मैंने दैट बोला ही था उनको चाहिए भाई, दे आर मिडफील्डर De शॉर्ट। Bruyne क्योंकि अब इंजर्ड हो गया है, so they हाँ need another midfielder now. हम्म। Anyways, guys, what's your say on Doku? यार आई थिंक इज वेरी पेसी फर्स्ट ऑफ ऑल। बिफोर बीइंग स्किलफुल, द फर्स्ट क्वालिटी दैट ही हैड इज भाई ही हैज इलेक्ट्रिक पेस, वो बहुत तेज है। और स्किलफुल तो है ही ऑब्वियसली। तो वही है कि एंड प्रोडक्ट नहीं है, रॉ है बहुत। तो हम्म। वही है, गार्डियोला के ऊपर है कैसे उसको ग्रूम करता है, क्या करता है, देखने को मिलेगा गॉर्डियोला क्या कर। का तो कोई कुछ पता नहीं यार उसको क्या बनाता है वो। विंगर अफ्रीकन है तो मास्टर। थोड़ा भाई रॉ है, देख। रॉ है यार, अभी ये नहीं, मैं बोलूंगा पेसी गॉर्डियोला, है काफी। गॉर्डियोला का कह रहा हूँ, ही माइट मेक हिम अ विंगर, अ सेंटर फॉरवर्ड। वी नेवर नो गॉर्डियोला क्या करेगा किस प्लेयर हाँ के साथ। सेंटर फॉरवर्ड भी बना सकता है। कुछ भी बना सकता है भाई, क्योंकि वो जो डिफेंडर को उससे छूट गया ना एक बार, फिर वो पकड़ में नहीं आने वाला, वो इस टाइप का। उसकी मतलब बहुत ही और तेज है यार भाई बंदा, बहुत पेसी है यार, वो बहुत बहुत तेज है ज्यादा। वो। तो अब हाँ, वन फॉर द फ्यूचर है, बट गॉर्डियोला के अंडर में जा रहा है तो इतना भाई भी फ्यूचर नहीं बढ़िया। है, मतलब एक एक डेढ़ साल में बढ़िया प्लेयर बन जाएगा। हाँ मतलब 2-3 साल में फिनिश प्रोडक्ट तो टाइम लग जाएगा बनने में, बट अभी वन फॉर द हाँ फ्यूचर ही है वो। बट ठीक है, मतलब इट्स अ गुड साइनिंग। इसके अलावा कोई एनी न्यूज दैट यू वांट टू डिस्कस, एनी मोर ट्रांसफर्स? I am bit disappointed with Aymeric Laporte. I'll be very honest, guys. मैं बहुत disappointed हूँ Aymeric यार, Laporte से that he agreed for Al Nassr. मैं Big यार deal. उससे डिसअपॉइंट नहीं हूँ, मैं फुटबॉल के लिए डिसअपॉइंट हूँ कि भाई प्रीमियर लीग ने, और उसने एक ऐसा प्लेयर, मतलब इतना बढ़िया वैसे डिफेंडर्स की इतनी कमी है, और वो इतना बढ़िया सेंटर फॉरवर्ड था, और वो किसी Center अच्छी लीग forward and में center मतलब back. लूज कर दिया उसको। आर्सेनल को जाना चाहिए था उसके लिए यार, ऑनेस्टली बता सेंटर रहा हूँ मैं। डिफेंडर सॉरी, हाँ। Perfect, perfect. Arsenal है, United लिवरपूल है। आ जाता भाई। अरे यार लिवरपूल लिवरपूल तो को खैर लेफ्ट। Aymeric Laporte कभी भी नहीं आने वाला, वो तू भी जानता है। इवन यूनाइटेड भी नहीं आएगा खैर वो यूनाइटेड कभी। कभी नहीं आता है। कौन सा प्लेयर आ गया यूनाइटेड एग्जैक्टली, सिटी का? कोई नहीं आता। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, टेवेज। ना यूनाइटेड आने वाला है वो, ना लिवरपूल आने वाला है। टेवेज। लेकिन टेवेस यूनाइटेड टू सिटी। यूनाइटेड से यूनाइटेड सिटी टू गया था, सिटी था। सिटी से यूनाइटेड कोई नहीं आया आज तक, उल्टा नहीं हुआ कभी। तो हम्म। मेरा वही है पॉइंट दैट, बट और भी टीमें थी, और या फिर फाइट करते हैं यहीं पे अपनी अपनी प्लेस के लिए। ही शुड हैव फाइट। सी जॉन मैड्रिड स्टोन्स ने क्यों नहीं साइन करा उसको, को, सॉरी, या पीएसजी ने क्यों नहीं साइन करा उसको। पीएसजी को मारो गोली, आई डोंट रियली फकिंग यार केयर मारो अबाउट गोली नहीं, वो पीएसजी। साइन कर सकती थी ना, वो पीएसजी अच्छी भाई टीम। बिड नहीं डाली ना काफी। अरे भाई, गई बिड नहीं नहीं यार डाली वो गोली। हम क्या बता सकते हैं, वो टीम ही नहीं गई मैं उसकी। वही कह रहा हूँ क्यों नहीं करी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। वो अब मैं पूछ लूंगा अल खलीफा से तो भाई अब मैं पैसों, क्या बोलूं पूछना ही यार पड़ेगा। यार देख यार, 28 साल का है वो, 28, 29, 30 साल का है शायद। अब पैसे मिल रहे हैं भाई उसको, पे इस वक्त, मजे लेगा भाई क्या? वो पीक पे इस वो तो है ही, वो तो मैं कह रहा हूँ भाई, उसकी क्या गलती है इसमें, उसको मेरे मैं होता, मेरे को कमाना होता, मैं भी निकल जाता। वक्त। नहीं, आई थिंक ही निकल ही गया। निकल ही। चलो एनीवे, आई थिंक उसका तो कुछ लैपटॉप मेरा वगैरह का इशू ये होगा। है दैट यहीं पे ही फाइट, आई थिंक ही शुड हैव फाइट फॉर हिज प्लेस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। फाइट करना चाहिए था उसको। यार पता नहीं, मेरे को लगता है दिस इज, इसको ना किसी स्किल लेवल पे, या कि वो एज अ प्लेयर अच्छा नहीं है उसके लेवल पे नहीं निकाला गॉर्डियोला ने। आई थिंक इनकी कुछ और डिसएग्रीमेंट्स थी ये, और ये अभी से नहीं थी, 1-2 साल से सुनने में आ ही रहा था कि इनके बीच में कुछ ना कुछ रिफ्ट है, इनकी आपस में सेटिंग सही नहीं है, तो इस वजह से वो निकला है वहां से। अगर, बट हाँ मैं भी सरप्राइज हूँ कि कोई बिग टीम
इन यूरोप नहीं आए इसके पीछे, क्योंकि यार पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे को तो बहुत बढ़िया प्लेयर लगता है, ही इज सो गुड ऑन द बॉल यार, पासिंग, डिफेंडिंग, स्ट्रेंथ, सब कुछ ही है उसके पास। तो सम आर्सेनल, बिकॉज देयर वाज रूमर ना पहले कि आर्सेनल माइट बी इन फॉर हिम, बट वही यार, आर्सेनल के पास भी 3 अच्छे खासे सेंटर बैक्स हैं, तो अब पता नहीं क्या कॉस्ट होती है एंड वेजेस एंड ऑल दैट, तो दे डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर हिम। बट ठीक है, चला गया गया, क्या कर सकते हैं। बट एनीवे, आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द मैच प्रेडिक्शंस, द स्कोर प्रेडिक्शंस फॉर दिस वीकेंड। तन्मय, यू स्टार्टेड ऑफ, मतलब यू स्टार्ट द Newcastle versus Liverpool. या 2-1 victory for Newcastle. ओके, यू आर गोइंग विद 2-1। यार ट्रिकी मैच, आई एम गोइंग फॉर अ 2-2 ड्रॉ इन दिस मैच। आई थिंक लिवरपूल का जो अटैक है, इट इज स्टिल गुड, उनको they can still hurt Newcastle. So I'm going for a 2-2 draw. Same. 2-2 draw. Anyways, moving on to the next one. इसमें आदर्श मैं तेज से start करूँगा. ये Manchester United versus Nottingham Forest. Which United? Manchester United. Man. The positive is that Mason Mount is not going to be playing and Luke Shaw. तो कभी कभी क्या होता है कि कोई चेंजेस होने से ना कोई टीम को लिफ्ट मिल जाता है, तो शायद केमिस्ट्री बेटर हो जाए, who knows. तो आई एम गोइंग फॉर अ, being very conservative, I'm going for a 1-0 victory for United. I think they will play better. They will still struggle to score goals, but I think they will still come out with a 1-0 victory. 1-0 or maybe 2-0. Oh, Akshay. Akshay? I am going for a 2-1 victory for United. I think Norts will score 1 goal. They'll pull one back. Okay. 2-0 for Manchester United. Okay. And एक चीज और है, लास्ट सीजन भी ऐसा हुआ था. आई थिंक टाइलर मलाशिया नाउ विल बी प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, राइट? भाई I rate him very highly. Maybe. मतलब मैंने उसको बहुत टाइम से देखा नहीं, आई डोंट नो वेयर ही इज। अगर वो स्टार्ट करेगा तो मेरे लिए भी सरप्राइज ही होगा, अदरवाइज वी विल प्रॉब्ली। पर अच्छा प्लेयर है यार वो, भाई बहुत अच्छा decent प्लेयर है। है भाई, और क्या, ही इज अ भाई करेजियस बिल्कुल प्लेयर। प्रीमियर लीग का प्लेयर है वो, प्रीमियर लीग के हिसाब का प्लेयर है भाई, बिल्कुल फिजिकल है और बढ़िया है वो भाई ये है क्रिएटिवली भी बढ़िया, थोड़ा ठीक ठीक है। है. ठीक है. आदर्श, तुझे क्या लगता है लेफ्ट बैक कौन स्टार्ट करेगा फिर? यार एलेक्जेंडर है एक Liva is हमारा। injured right now. यार या आई वैन नो। बिसाका ही करेगा राइट बैक स्टार्ट, तुम कुछ भी बोल लो, ये और वो डालो लेफ्ट बैक वही करेगा, डालो टायरन लेफ्ट। मलेशिया। नहीं नहीं, डालो भी खेल लेता है लेफ्ट बैक, ये क्योंकि देख एरिक एरिक टेन हैग के भी दिमाग से सोचना है यार, वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता। आई थिंक ही विल स्टार्ट डालो तो इन लेफ्ट बैक। टायरन मलेशिया तो लेफ्ट बैक ही खेल रहा था भाई कहाँ खिलाया उसको, तूने देखा है उसको पिच पे 6 महीने से पिछले? भाई। मैं ये नहीं कह रहा, जब वो लास्ट खेल रहा था तो वो लेफ्ट बैक खेल रहा था, ये कह रहा हूँ मैं। वो खेल रहा था लेकिन उसको टीम से बाहर हम्म, निकाला उसने, और फिर उसके बाद वो कभी लाया ही हाँ नहीं, तो मेरे को नहीं लगता कि वो तो अभी उसको भाई एकदम से टीम में लाएगा। पागल है ना वो, उसकी अब वो गलती है तो ये वो, अब मलाशिया को मैंने पागल भी है। लास्ट देखा था जब उसे सेविया के अगेंस्ट ओन गोल मारा था. वही मैं कह रहा हूँ, तो आई थिंक मैं वो तो पर्सनली चल वन ऑफ था, बट अच्छा प्लेयर है यार वो। मैं तो चाहता हूँ कि भाई तुम मलेशिया को हर गेम स्टार्ट करो, बट मेरे को नहीं लगता हाँ टेन हर हैग गेम करेगा। स्टार्ट कराओ। आई थिंक टेन हैग विल स्टार्ट विद दिस गाय डालो इन लेफ्ट बैक, और राइट बैक में वैन बिसाका, बट आई एम गोइंग स्टिल गोइंग फॉर अ 1-0 विक्ट्री, हूसोएवर स्टार्ट्स, डजंट मैटर। 2-0 victory for me. 2-0 victory as per me. Next one. Sheffield United versus Manchester City. 4-0 दोनों. हाँ? 4-0 मैन सिटी। आदर्श? अगर हैट्रिक मारेगा हालैंड तो अल्वारेस भी एक गोल तो मारेगा ही। या 4, आई एम आल्सो गोइंग फॉर अ 4-0। 4 भाई ये नहीं। क्या लॉजिक हुआ? हाँ यही लॉजिक है मेरा भाई। हालैंड नहीं छोड़ेगा इनको भाई, 2 मैचेस से गोल नहीं मारे उसने भाई, वो ऐसा नहीं, प्लेयर। एक ही मैच है, एक ही मैच है. पहले में तो अच्छा, मार दिया 2 गोल उसने. अरे मैं प्रीमियर लीग की बात नहीं कर रहा, जो अपने सुपर कप हैट्रिक भी में। तो मारनी है भाई सुपर उसको। कप, सुपर कप में और इसमें. भाई हाँ. उसको उसके लिए हैट्रिक भी तो मारनी है, हैट्रिक कब मारेगा? टाइम है हैट्रिक का। नहीं नहीं, 4-0 आई कैन सी 4-0 यार, इजीली, इवन मोर देन दैट, बट 4-0 तक तो जा सकता है स्कोर। 3-0 for me. 3-0. चेल्सी वर्सेस ल्यूटन टाउन। चल रहा है एक अभी गोल तो. मार के सो गई चेल्सी भाई। 2-1, 1-0 victory or 2-1 victory for Chelsea, not more than that. 2-1 कर रहा है भाई, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग ल्यूटन टू स्कोर। तो चेल्सी की वेरी डिफेंस पे पॉजिटिव। मुझे भी 1% का भरोसा नहीं है. क्या नहीं स्कोर, यार, क्या हाफ डिफेंस टाइम तो हो गया सही है? है चेल्सी का। हाफ टाइम हो गया है? ऑलमोस्ट हो गया है।
I'm going for a 2-0 victory for Chelsea. Second half में एक और गोल मार के क्लोज करेंगे गेम. हाँ, सेम 2-0 फॉर चेल्सी. आई एम अफ्रेड 1-1 ना हो जाए. 1-0. मेरे को भी लग रहा था यार, कोई भरोसा. भाई पोचेटिनो की हालत खराब हो जाएगी अगर ये मैच ड्रॉ भी हो गया ना, अगर सही. चलो एनीवे, नेक्स्ट मैच. साफ हो जाएगा पोचेटिनो. Arsenal versus Fulham. आर्सेनल वर्सेस कौन सा है? So Fulham. let me go first on this. Fulham. I'm going for a 3-0 victory for Arsenal. Convincingly. Akshay. यार मेरे को थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, पता नहीं क्यों. आई थिंक फुलहैम स्टार्ट ऐसी करती है हमेशा और फिर थोड़ा कंसोलिडेट करती है बीच में. तो 2-1 आई विल गो फॉर 2-1 विक्ट्री फॉर आर्सेनल. 3-0. मैं भी आदर्श से एग्री करता हूँ. Easy victory. 3-0. ओके. एक और मैच है, इनको तो मैं भूलूंगा नहीं. बिटवीन लेस्टर सिटी एंड आई थिंक इट वाज बर्नमथ. लेट मी सी. लेस्टर कहाँ से आ गई? ओ लेस्टर नहीं, सॉरी, वो यार टॉटनम. कौन से? टॉटनहम वर्सेस बॉर्नमouth. टॉटनहम को भूल कैसे गया तू? टॉटनम इज अवे. टॉटनहम भाई टॉप अबे 6 टीम है क्या? बर्नमथ इज होम. टॉटनम अवे. बोलो भाई. 2-1 यार जीत Bournemouth. जाएगी टॉटनहम, सही खेल रही है. 2-1. Bournemouth 2-1. आई विल गो फॉर. भाई तन्मय, इसमें तो हम तेरा ओपिनियन नहीं पूछने वाले टॉटनहम के मैचेस में. फ्रॉम नाउ ऑन वी नो कि you hate Tottenham to the core, but that's okay. And I'll go for 3-1 victory for Tottenham. अच्छा खेल रहे हैं भाई. Credit where is due. I don't hate Tottenham. Actually, I don't hate Tottenham. If you ask me, Tottenham is just like a shit. They should be kicked out. They don't चलता deserve फिरता to be playing. डूबता चलता Yeah, फिरता they डूबता जहाज. play absolute terrible football. Absolutely terrible football with no mentality in भाई the club. Nothing. मैन्यू को हराया भाई. भाई अबे वो ऐसे that was a statement भाई. सिटी को भी है. सिटी को भी हराया उन्होंने. ऐसी बात है, उन्होंने इस हराया सीजन City तो को भी है. नई टीम है ना यार पूरी. केन भी नहीं है. नहीं तू समझ नहीं रहा. उन्होंने हराया सिटी को भी है, लेकिन मिला क्या हरा के? कुछ भी नहीं. ठीक है. वन ऑफ, वो थोड़े वन चलो ऑफ में ही चलते हैं टॉट वाले. यार, मेरे तो को मैच बाय मैच. मैं अपनी प्रेडिक्शन दे देता हूँ. आई एम गोइंग फॉर अ 1-1 ड्रॉ फॉर दिस मैच. रीजन बीइंग हाँ कि, ऐसा और भी हो सकता दिस हैज नथिंग टू डू विद कि लास्ट मैच में उन्होंने हमें हराया था. मेरे को ऐसा लगा यार, देख यूनाइटेड का भी, अब मैं ज्यादा पिछले मैच के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, बट वी हैड टू गिल्ट एज चांसेस इन द फर्स्ट हाफ. इफ वी वुड हैव टेकन दोस चांसेस वी वुड हैव वन दैट मैच, ट्रस्ट मी. और टॉटनम के है. जो दोनों ही गोल मारे ना, टॉटनम से दोनों ही कन्विंसिंग गोल्स नहीं थे, बस वो पड़ गई किस तरीके से, घुस गई बॉल हाँ, अंदर. वो दोनों साथ ही. कहाँ से पहुंच गया मुझे खुद ही समझ नहीं वो आया. कहाँ एकदम से, से कहाँ से आ गया ये? अरे वो लूक शॉ गधा है ना, उसने लेफ्ट बैक पोजीशन पे कुछ कर ही नहीं रहा था वो, इसलिए वो अंदर आ गया उसने. और सेकंड गोल तो तुम्हें पता ही है, वो ओन गोल कैसे पड़ गया. तो मुझे लगता है टॉटनम अभी ना इतना कन्विंसिंगली गोल नहीं मार पा रही, और बर्नमथ एट होम इज वेरी गुड टीम जनरली स्पीकिंग. दे कैन गिव अ फाइट टू टॉटनम. वैसे तो टॉटनम को जीतना चाहिए, बट आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई एम गोइंग फॉर अ 1-1 ड्रॉ. मुझे लगता है कि हो सकता है ड्रॉ. 2-1 Bournemouth. 3-1 यू 3-1 गोइंग फॉर टॉटनहम. अ विक्ट्री. यस नहीं नहीं, ये भाई ये बॉर्नमouth विक्ट्री के लिए जा रहा है. भाई, वो तो जाएगा ही. वो तो मैंने तेरे को बता ही दिया. अच्छा, तूने पहले यही बोला था, 2-1 बोला था. अबे और क्या. अबे भाई वो तो जाएगा ही. तो उसको तेरे को पता है टॉटनहम एंड तन्मय तेरी नॉर्थ क्या पोल एंड साउथ पोल. तेरी क्या मतलब वो है टॉटनम से, तो मैन सिटी के तो आसपास भी नहीं आती कभी वो, पर हाँ वो मैन सिटी को हरा जरूर देती है हर सीजन में तभी तो एक बार. हाँ. नहीं उस वजह से हेट नहीं करता हूँ कि वो सिटी को हरा देती. मुझे सिटी को गुस्सा आता है कि दो बड़ी टीम से कैसे हार कम सकते ऑन यार, 2 कौड़ी की टीम नहीं थी वो. पिछले सीजन बहुत उसने हगा अच्छा वाला, पर उससे पहले तो बढ़िया ही खेल रही थी भाई. बहुत टॉप बढ़िया 4 ही खेले. आती थी. और टॉप नहीं, 4 ऐसे टीम थी यार. कम उससे ऑन पहले यार, भी टॉप 4 सेवन टीम आए थे थी यार. इतनी कॉन्फ्रेंस यार बेइज्जती लीग मत करो. मोरिनियो के पहले तक, जब तक पहुंचता तब तक अच्छी थी, उसके बाद थोड़ी. तब तक. हाँ, भाई तब उसके बाद तक भी अच्छी टॉप थी. 5 थी. उसके उसके बाद भी बाद टॉप तो 5. यार एक ही तो वो सीजन बेकार खेला इन्होंने, अक्षय जो फुटबॉल लास्ट देखी सीजन हुआ है. उनकी. अक्षय उनकी फुटबॉल देख. इतने हर बार टॉप 4, इतने साल ये लोग टॉप 4 करे. ये साले चैंपियंस लीग फाइनल पहुंच गए और फिर भग दिए. ये हग्गू है एक नंबर के टॉटनहम. यस. सो गाइस, ये हम लोगों का सारा जो है आज प्रिडिक्शन एनालिसिस था अबाउट अपकमिंग गेम्स. हमारे एनालिसिस रिगार्डिंग द ट्रांसफर जो भी हो रही है. आप लोगों का कोई भी एनालिसिस जो भी है, जो भी आप कोई बात करना चाहते हो, आप किसी चीज से अग्री करते हो, मुझसे अगर आप डिसएग्री करते हो अबाउट टॉटनहम, कोई सी भी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. एंड टिल देन
now हमारा जो theme है regarding this channel, it has totally changed, as Adarsh mentioned in the beginning of this video. So do watch this video, and if you want any kind of change or anything, do mention that in the comment section. That what exactly do you want if you are not Yeah, agreeing exactly. with us. So What till type of then, content do you want to see going ahead? exactly. And other than that, keep sharing, subscribing, liking, and share it with your friends, guys. We need your support. Yes. Without the support, we also won't be able to come up with more videos. To be very कर दो honest. भाई, कर दो like, कर दो यार. Exactly, बहुत मेहनत exactly कर as रहे हैं यार, Akshay कर दो mentioned. like please. Exactly as Akshay mentioned. So do subscribe, comment, and like, and share it with your friends. Till then, soon we'll come up with another video. Until then, see you everyone. All right, Bye-bye. guys. Goodbye, See you. guys.